Now what is rand range function? Rand range function is also a second type of function which accepts your integer numbers and generate the integer random numbers, but it available in two forms. One is with two parameter, one is with one parameter. One by one we will look into the each form and we will check the demos. Okay, so now when you are passing two parameters L and U, lower limit and upper limit, हाँ जी, तो कंडीशन क्या होना चाहिए? L must be lower than U. ये होना चाहिए, वो जो randant का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ फॉलो होगा. The lower limit, the first parameter will be the lower and the second will be the upper. तो यहाँ पर वो फॉलो होगा, the condition will be follow. Only integers. It only accept integers. It never accept floats. That you have already visualized also. What the random number it generates? Minimum L and maximum U minus 1. This is the change. Only this is the change. 4a मैं पढ़ा रहा हूँ. Rand range minimum L generate करेगा, लेकिन कितना maximum जाएगा? U minus 1. तो U कह सकते हो तुम इस फंक्शन को कि ये यूनिफॉर्म का इंटीजर वर्जन है. ये यूनिफॉर्म का इंटीजर वर्जन है. यूनिफॉर्म में क्या होता था? L से लेके U minus 1 तक आते थे, लेकिन वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है और ये इंटीजर नंबर जनरेट कर रहा है. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, rand range with one parameter, only one parameter. So, just like in a range function, whenever you are passing only one parameter, that will be treated as the end parameter or the stop parameter. So, the starting index will be 0. So, it starts from in a range function. If you are only passing this, the range, I am passing only 5. Then what would be the list? The list would be 0, 1, 2, 3 and 4. You know very well. Same theory is here. That means if you are going to give you only the one parameter, that will be considered as a last limit. Okay, your upper limit. And the minimum value that it could generate will be 0. It can generate minimum 0, but it never touches again U. It will give you minimum U minus maximum U minus 1. Hope so it is clear. कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बताया, बहुत सिंपल बताया. अगर आपने L और U पास किया पिछले वाले फॉर्म में तो L से लेके U minus 1 तक जाएगा, और अगर आपने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया तो 0 से लेके उस जो पैरामीटर पास किया U minus 1 तक जाएगा. Hope so it is clear. And range. Here I am passing initially. Let's say I am going to give you first parameter 5 only. Now you see, or even I am giving you 50. You will change. What it gives me? Every time it generates number like this. So every time it can give minimum 0. Minimum 0 is possible. अब कहते सर 0 तो जनरेट नहीं हो रहा, अरे तो भाई वैल्यू छोटी कर दो, then may be possible. तो आ सकता है, पर हमेशा जरूरी नहीं क्या है, लेकिन आ सकता है. बहुत रेयरेस्ट होता है, रेयर होता है कि आ जाए, जरूरी नहीं है. ठीक है, मिनिमम 0 देखो आ गया, तो ये जरूरी नहीं कि हम दिखाएं 0 आना, लेकिन दैट्स अ पॉइंट. होप सो इट इज यहाँ देना 5,50. या मैं इसको और थोड़ा सा इसका जो डिस्टेंस है उसे कम करता हूँ, डिफरेंस को कम करता हूँ. लेट्स से आई एम गिविंग ओनली 10. तो नाउ यू सी द चेंज. मिनिमम 5, मैक्सिमम 9 आ सकता है मैक्सिमम. ठीक है, समझ में आ रहा है? कभी 10 टच नहीं करेगा. तो L से लेके U minus 1 तक आ रहा है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सिंगल पैरामीटर, मल्टीपल डबल पैरामीटर्स. सो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबको. सो मूव ऑन टू द चॉइस फंक्शन. चॉइस फंक्शन. Okay, now what is the job of the choice function? Choice function is used to get a now point is that अभी तक जो हमने functions पढ़े हैं, these all functions are basically dealing with the numbers. Now is there any possibility to get my integer number or my specific character or my specific list or my specific symbol? So if you want to go with that, you can go with a choice function. So choice function accepts sequence, and that sequence could be either list, डबल, स्ट्रिंग और एनी आइटरेबल. मींस रेंज. आप रेंज में जब देते हो तो वो भी एक आइटरेबल जनरेट करता है, या किसी तरह से भी आप एक आइटरेबल क्रिएट कर देते हो और जिसमें एक सीक्वेंस हो, जिसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो, तो वो फिर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट हो जाएगा. और उसमें से वो क्या करेगा, उसमें से वो एक नंबर रैंडमली जो है वो आपको रिटर्न करेगा. तो रैंडम वैल्यू क्या जनरेट हो रही है? रैंडम वैल्यू है यहाँ पर
returns any random value from the sequence. So अगर आपने लिस्ट में लेट्स से कि आपने कुछ भी लिया हुआ है, लेट्स से आपने लिस्ट में लिया हुआ है 10 20 30 40, तो ये रैंडमली कभी 10 थ्रो कर सकता है, कभी 40 थ्रो कर सकता है, कभी 10 थ्रो कर सकता है. तो इट इज द जॉब ऑफ रैंडम फंक्शन, ऑफ बेसिकली दिस चॉइस फंक्शन. हाँ, और ये जो है ना, जो कंडीशन ये है कि आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी. ऐसा नहीं कि आप उसमें एम्प्टी सीक्वेंस पास करो. अगर आपने एम्प्टी सीक्वेंस पास किया तो वो एक एरर है. Let's say L is equals to Python एंड डॉट. अभी फॉर लूप लगाना हमेशा ज़रूरी नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू विदाउट यूजिंग फॉर लूप. r dot choice in bracket L, and you see what the answer will be returned by this code. ठीक है ना. रैंडमली इसमें से किसी भी से भी एक पैटर्न रिटर्न करेगा. वाई ज़रूरी भी नहीं है कि मैं उसे लिस्ट में कास्ट करूँ, कोई ज़रूरी नहीं है. मैं उसको ऐसे भी रख सकता हूँ, डायरेक्ट भी चल सकता है, नो प्रॉब्लम. मैं स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँ. मैं इसको ऐसे डायरेक्ट भी कॉपी करके चला सकता हूँ. अब आप चलाओगे लाइक दिस, तो ज़रूरी नहीं आप लिस्ट लेकिन पास कर सकते हो, आप टपल पास कर सकते हो. ओके ना. अब आप देखो, तो ये मेरे को जनरेट करके देगा. अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझको ना एक नंबर है, मेरे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, लेट्स से मेरे पास अल्फ़ाबेट का सेट है, वो एक अलग चीज़ है कि मैं कैसे लाऊंगा अल्फ़ाबेट का सेट. ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, एंड आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर सेट and I'm putting this value here. Okay, now I'm just passing this caps here. Now you see it could give me any number randomly from it. अभी देखो मैं इसका बहुत यूज कर सकता हूँ. क्या यूज कर सकता हूँ? जस्ट यू सी दिस. मैंने एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज ऑफ, लेट्स से मैंने 4 लिया. मुझे कैप्चा बनाना है, ठीक है, मुझे 5 कैरेक्टर्स का कैप्चा क्रिएट करना है, कैप्चा काइंड ऑफ थिंग मुझे क्रिएट करना है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया t इक्वल टू t प्लस. रिमेंबर मैंने आपको पढ़ाया था, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है. t इज इक्वल्स टू एम्प्टी. व्हाट यू आर डूइंग, you are generating the random number, you are generating the random value from this choice function, and it always it is giving, every time it is giving one character randomly from choice, okay, from the characters sequence. और वो आप अपेंड कर रहे हो किसमें, t में. तो पहले वो एम्प्टी है, फिर उसके बाद एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, इस तरह से आपके पास फाइनली कैप्चा आ जाएगा और यू आर प्रिंटिंग कैप्चा. Okay, so it is a kind of thing we can generate a random number as and when required. See, this is every time when you run the code you will get a different captcha. Now my point is that कि मुझे अगर ये कोड बार बार जनरेट करना है, सपोज करो मुझे 4 कैप्चा चाहिए, तो मैंने लिखा फॉर j in range of, मुझे 4 कैप्चा चाहिए 4, and I will shuffle this entire code like this. Now you see the code. Now you see I'm going to run the code and you see the change. See, there are different words. Now every time what I am going to do is one change I have to do. Every time the t should be initialized here. T should be initialized here. Now let me run the code. See, every time it is going to generate me a captcha, and that captcha is of 5 character long, and every time it is giving me a different word. Yes or no? Yes. Okay. Similarly we can generate a OTP also. We can generate an OTP number also. So somebody says I have a numbers from 0 to 9 and please generate me the this one OTPs. So very simple, you just take this code, almost same code I'm going to copy, and then I will make a change here. So first of all I must know how to generate I must know how to generate a
one OTP number. So let me take one OTP as a variable, or let's say I have a D is equals to digits, and I am taking these digits as a string 0 1 2 3 4 5, okay, 6 7 8 9. This is my set of digits. Now what I am doing is I am going to take one empty OTP. OTP is equals to empty. Quite similar to the same code. Okay, and what I will do here, every time when it generates, I am going to catch that digit into OTP, okay, and print that OTP. So now just to generate, तो ये क्या करेगा, चॉइस 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, और 5 बार चलने के बाद फाइनली OTP में 5 कैरेक्टर्स, या मुझे 4 डिजिट का OTP चाहिए, तो ये 4 से डिजिट्स निकलेंगे और वो OTP में जाके अपेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली जब ये फॉर लूप फॉल्स होगा तो 4 बार चलेगा, तो 4 डिजिट निकल के OTP में ऐड हो चुके होंगे, तो आपको 4 रैंडम सिंबल्स निकलेंगे D से, और वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और हम यहाँ पर कैर्स की जगह D लिखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू D से उठानी है, ना कि कैर से उठानी है। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू रन द कोड, वी विल गो अप and run the code. See the change we got, because here we have to put OTP. Okay, 6066. Yes or no? Next 6066, ये फिर से चलाओ, ये फिर से रन किया मैंने, 4486. सो एवरी टाइम इट विल बी चेंज. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर लूप को एक और फॉर लूप में बंद कर देता हूँ. मुझे कितने OTP चाहिए, मुझे 5 OTP चाहिए, तो 5 टाइम्स द इनर लूप विल रन 5 टाइम्स. जस्ट यू सी एंड यू सी द चेंज. इज इट क्लियर नाउ? हमारे पास 5 OTP जनरेट हो गए. अगर मुझे इसकी इंटीजर, अगर मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, मैं इसको कास्ट कर लूंगा इंट में, और मैं इसको आगे यूज कर लूंगा, ठीक है. तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट हम इसे OTP जनरेट कर सकते हैं, 4 डिजिट का रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, हम किसी का रोल नंबर जनरेट कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है. हमें कोई वॉलंटियर का प्रोग्राम बनाना है, हमें कोई 5 स्टूडेंट चाहिए, कोई भी रैंडमली, तो हम 5 नंबर जनरेट कर सकते हैं. हमें पता है रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 50 तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम 1,50 पास करके भी रन करा सकते हैं. तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. हम रैंडम से भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन बेसिकली दिस इज द वे वी कैन जनरेट अ OTP एंड रैंडम कैप्चा. होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू यूज दिस चॉइस फंक्शन. बेसिकली एक तरह की एप्लीकेशन मैंने आपको समझाई है इसकी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. इसी तरीके से हम आपको क्या करना है, आपको अपने लेवल पर, मैं पूछूंगा कल, ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू मेक अ कोड टू जनरेट पासवर्ड.